There's the book. My book situation is really, really, really bad. Let me just put down the brightness. Okay. Now I can see it. Great. Perfect. Now, we open in last video of the part 1 we had finished nutrition. Now we're going to come to respiration. Nutrition we had um, well, let's the most important part of the nutrition was the human nutrition in human beings, which I totally explained you. It was easy. It's really easy. Let's have a recap of the human digestive system. So first, what happens? We eat food. We have saliva. Saliva gives salivary amylase. Salivary amylase comes from over here, and now it's going down to our stomach. Inside our stomach it goes, and inside our stomach there we have three things. First is hydrochloric acid, second is mucus, third is pepsin. Hydrochloric acid makes the medium acidic, second is mucus. Mucus protects the inner lining of the wall, and the last is pepsin. Pepsin synthesizes the proteins, right? Protein it digests, right? It helps in digesting the protein enzymes. Now next will be from the stomach. This is the stomach. It comes now down. So this is our well, it is this part. You see right there, this part, right below the stomach. This is connected with pepsin and our liver. Our liver secretes bile juice. Bile juice is kept in the gallbladder, and it goes through the bile duct to the line. Like for example, this is the pipe that is coming from stomach. This is the stomach. It's coming from here, and so from here the pepsin and all the well. Now let's talk about pepsin. Pepsin is a really nice thing, you know. What does pepsin help in? First, let's know that. So, pancreatic secretes pancreatic juice. The pancreas secretes the pancreatic juice, which contains enzyme like trypsin for digestion of process and lipolysis for breaking down of emulsified fats. Okay. Now, when we were talking about the bile juice, it has bile salts also, which break down the bile salts break the food or the medium into smaller globules, increasing the efficiency of enzyme action. What enzyme action? Pepsin, right? Now, then that thing goes to the small intestine. Where is it? It is over here, between part over here, this one. So this is the small intestine. When it goes from here to the small intestine absorbs all the proteins, nutrients from the food, like every useful thing that our body needs. From the small finger like things, like it's like this. Okay, this is food is going like this. So this, guess what this is? This is villi. Okay, and there's a diagram of villi over there. There was, I don't know where it is, but there's a diagram of villi over here. Let me just find it. Really given in this book. So very biology, like it's raw, like what do you say? In this एस्टन बुक दे ऑलवेज हैव लाइक क्या बोलते हैं, एस्टन बुक के अंदर में तुम्हारा ये रहता है, बहुत फ्लैशी रहता है, मतलब उसके अंदर में तुमको डायग्राम्स नहीं मिलता. डायग्राम्स इज इजी टू अंडरस्टैंड. ऑल इन वन के अंदर तुम्हारा डायग्राम्स रहता है. ऑल इन वन के अंदर देखते हैं. ये इधर आ, मैंने बोला ना व्हील का डायग्राम है ये व्हील का डायग्राम है. मेरा कैमरा बहुत खराब है, वो दिख नहीं रहा. This is the diagram of wheel. This. Okay. Now I might have a nice another place where I might get a wheel. And I think there is this is safe. If you look over here, this is a diagram of wheel. Okay. Use a pen for better understanding. Here it is. Okay.
this is a wheelie. This outside absorbs the food. Okay, and let's see what it is. So the outer part is wheelie, and the inner part. Okay, so the lining between it is lactile, and the okay, now you will understand it better. So this part is wheelie, and this part is lactile, and when you go over here, it's a very cave type of Mariana Trench. Okay, this is called cryptis. Cryptis. So what does it? What is it used? Let's see. Might be written over here. Okay. Absorption. In the process which digestive food passes from the alimentary canal into the blood, all this digestive food is taken up by the walls of intestine, which has numerous villi and lacteals, small lymphs capillaries found in the villi of small intestine. Okay, what does, like, let's have a better use of these things. क्या बोलते हैं? The cryptus of Libelium vein. It has basically, it's like a absorbing thing. So in the stomach, like this is villi and there's another villi. So this part is the absorption chamber. Okay, it absorbs the thing. That's all you need to know. Nothing else. That is just enough of you, because that's all that's gonna come in the exam. Okay. So now from the villi. Okay. Now from the small intestine, it goes to the large intestine. What does the large intestine have? Large intestine is a big one. Okay. What does it help in? Absorption of water. What is left? It is only water. When you have taken everything, nutrients and everything out of the food, what is left? Water. That's what you'll do. You will take the water out of the food. Okay. Then it becomes what we call poop. Okay. It comes out of the anus. Okay. And the last muscle is anal sphincter. And there's one more sphincter that is present in the outside area of the stomach. Like when you exit the stomach, like this is the whole stomach. In the exit, there is this. Okay, this is the anal sphincter. No, this one. I forgot the name. Shit. Sphincter muscle. It's just called sphincter muscle. Okay, it's not that much. It's nice. Now we'll come to today's topic, that is respiration. What happens in respiration? There's a difference between respiration and breathing. This is breathing. Respiration is when wait, shit, what is respiration? There's a difference in respiration. Shit. Respiration is different as it uses breakdown. It is a difference of breaking it. Okay. There was a differentiation of respiration. Let me read it. Just a second, guys. Just a second. Finally, मैंने पूरा का पूरा respiration वाला पार्ट पढ़ा है. अब चलते हैं respiration समझ में. लेकिन respiration का कुछ पार्ट समझ. जब हम लोग बात करते हैं कि breathing और respiration में क्या difference है? Breathing हम लोग breathing humans में होता है normally, and मतलब जैसे we take nose goes to lung, comes out of lung. That's it. ठीक है? इतना ही है respiration, breathing. But when it comes in respiration has different varieties. ठीक है? And it can happen. It's basically godfather of breathing. मतलब breathing is a part of respiration. What happens in respiration? Respiration helps. कैसे बोल सकते हैं फिर? Respiration definition. Best समझ पाएगा. During this process, many organisms use oxygen, acquired food from outside the body, and use it for breaking down of food materials to provide energy for various metabolic reasons in the body. इसको पढ़ के क्या समझना? ठीक है? Explanation कुछ बड़ा चीज़ नहीं. Just understanding what the line means. इसमें क्या बोला है? During this process, many organisms use oxygen acquired from outside the body. क्या बोला है? जो oxygen बाहर है. This is oxygen outside. We take it. Come here. We'll have party with it. ठीक है? और party में breaking down of food materials to provide energy. क्या है? वो is like that guy is like क्या बोले? हाँ. That guy is like a fuel. It comes in. Here you have your नहीं. That guy is like a starter. आग जैसे होता है ना गैस चैम्बर के अंदर करके इसमें कुछ जल जाता है. The food is your fuel. The oxygen is a starter.
starter, or let's say whatever you think it is. It mixes with the fruit, breaks it down, and provides energy for various metabolic reasons in the body. कैसे? हाथ ऊपर कर रहा हूँ, इसके लिए ऑक्सीजन चाहिए, बोल रहा हूँ, इसके लिए ऑक्सीजन चाहिए. बेसिकली वी नीड ऑक्सीजन फॉर एवरीथिंग इन आवर बॉडी, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है. नाउ when it comes in respiration, respiration has types: aerobic respiration and anaerobic respiration. What happens in aerobic respiration? Now definition of aerobic respiration is really necessary. ठीक है. Aerobic respiration, the respiration which takes place in the presence of oxygen, is called aerobic respiration. What are we surrounded with? Air. Aerobic. Okay, it involves things from air. Aerobic respiration, that's how you should remember it. In this process, glucose gets completely oxidized to release CO2, water and large amount of energy. ठीक है. What happens to it? क्या बोला है? In this process, glucose gets completely oxidized. क्या है? Glucose oxidize होता है to release CO2, water and large amount of energy. Glucose क्या है? ग्लूकोज बेसिकली क्रूड ऑयल है. क्रूड ऑयल को ऑक्सीजन मिलता है, वो क्रूड ऑयल को तोड़ के पेट्रोल, डीजल, ये सब चीज़ बनाता है. पेट्रोल, डीजल क्या है हमारा? CO2, वाटर एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. अब इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इट और डिफरेंट तरीके से, तो और आसान की तरीके से अगर तुमको समझ जाए तो तुम ऐसे ले सकते हो कि जो ग्लूकोज है, इट कंसिस्ट ऑफ CO2, वाटर एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. उसको तोड़ के तुम्हारा जो ये क्या बोलते हैं ऑक्सीजन है, वो एरोबिक रेस्पिरेशन से उसको तोड़ा के इनफॉर्म में लेकर. सिंपल. ठीक है. नाउ एनारोबिक. एरोबिक का ऑपोजिट एनारोबिक, नहीं याद कर सकते. ठीक है. एनारोबिक में क्या है? रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन. नॉट एब्सेंस का मतलब क्या है? जब कमती है, जब नहीं है. ठीक है. अगर लेट्स चेक इसका मीनिंग ही निकाल लेते हैं. State of being away from person, non-existent from the total absence of physical. ठीक है. तो अभी तो मैंने समझा है, वो है कि एब्सेंस क्या होता है? व्हेन देयर इज समथिंग इज नॉट देयर. ठीक है. मतलब जैसे कि आई एम हियर, आई एम नॉट हियर. एब्सेंस ऑफ. ठीक है. जस्ट लाइक एब्सेंस ऑफ एयर, जब ऑक्सीजन नहीं रहता है तब क्या होता है? In this process, glucose food is oxidized incompletely and releases small amount of energy. क्या है? बेसिकली ऑक्सीजन पूरा काम करता है, और बिना ऑक्सीजन का जो तुम्हारा in this process glucose food is oxidized. It is oxidized incompletely and releases small amount of energy. अभी कैसे होता है? The release of energy in aerobic process is much more than in an anaerobic process. It takes place in yeast in human muscles in the way discussed below. क्या है? अब ये yeast में फॉर्म होता है और human muscles के अंदर फॉर्म होता है. ह्यूमन मसल में कब होता है? भाग लिया, सांस कमती पड़ गया, ऑक्सीजन इज लेस इन द बॉडी, मोर अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इज बी बर्न. दैट्स व्हेन एनारोबिक रेस्पिरेशन हैपेंस. ठीक है. तब आता है क्रैम्प. क्यों फॉर्म होता है? लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है पैर के अंदर. वो आएगा कि आएगा. सो एनारोबिक रेस्पिरेशन इन यीस्ट. सबसे पहले यीस्ट इन एनारोबिक रेस्पिरेशन. द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यीस्ट सेल इनकम्प्लीटली ब्रेक्स डाउन द ग्लूकोज इनटू एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू रिलीज एनर्जी. क्या होता है? जो ऑक्सीजन नहीं रहता है उसको जब यीस्ट होता है उसको इनकम्प्लीटली ब्रेक करता है ग्लूकोज और एथेनॉल बनाना. ग्लूकोज को, जो ग्लूकोज है उसके अंदर यीस्ट के साथ में, उसको एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है. ठीक है. टू रिलीज एनर्जी. अब इसका यहाँ पे ये लिख के रखा है, लोग देख लो. तुमको दिखेगा नहीं लेकिन फिर भी दिखा रहे. तुम भी क्या रखो. यहाँ लिखा हुआ है. हाँ लिखा हुआ है ये जगह. दिख नहीं रहा होगा तुमको, मैं पढ़ के सुना देता हूँ, बेटर रहेगा. ठीक है. क्या लिखा है? ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल, एरो इन साइटोप्लाज्म, 2 पायरुवेट जो है 3 कार्बन मॉलिक्यूल, प्लस एनर्जी. Well, in absence of oxygen,
यीस्ट के अंदर में क्या फॉर्म होता है, एथेनॉल, 2 कार्बन मॉलिक्यूल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, और क्या ही करना, ठीक है। अब इसको नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं डेली लाइफ के अंदर में, एनारोबिक रेस्पिरेशन इज टर्म्ड एज फर्मेंटेशन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फर्मेंटेशन सुना ना, मैंने इसको फर्मेंट कर दिया, उसको फर्मेंट कर दिया, ये हो गया वो हो गया, फर्मेंटेशन, ठीक है। नाउ anaerobic respiration in muscles. Anaerobic respiration in muscles occur during vigorous physical exercise. In this, glucose is eventually metabolized from lactic acid. The accumulation of lactic acid causes fatigue and muscle cramps. After prolonged exercise, it can be summarized as वो फॉर्मूला देखा रखा है, इट्स नॉट दैट मच नीडेड बट तो होता क्या है, जब हम लोग भाग दौड़ी करते हैं जैसे मैंने बोला, तो फिर उसके बाद में क्रैम्प पड़ता है क्योंकि हम लोग के पास ऑक्सीजन कम रहता है, हैंड देन उस पर लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है, ठीक है। उसके बाद में क्रैम्प आ जाता है क्योंकि प्रोलॉन्ग एक्सरसाइज इन वेरी बिग फॉर्म, बेसिकली औकात के बाहर का एक्सरसाइज कर लिया और कुछ नहीं, ठीक है। द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन कैन बी समराइज एज फॉलोज। ये बहुत अच्छा है, ये याद करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं बट नॉर्मली लोग याद करते हैं क्योंकि सब अंडरस्टैंडिंग में उतना अच्छा नहीं होता, लेकिन खैर देख लो, दिख रहा है ये ब्राइटनेस कम कर देता हूँ, अब दिख रहा है, शायद से उल्टा हो गया इसके अंदर, मेरे को समझ में नहीं आएगा, उल्टा दिख रहा है शायद इसके अंदर। वेल कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू जस्ट रियलाइज कि तुमको ऐसा उल्टा दिख रहा है। इसमें जो लिखा है वो है the overall process of breaking down glucose 6 carbon molecule, arrow glucose 6 carbon molecule, arrow in cytoplasm, cytoplasm में क्या होता है, pyruvate 3 carbon molecule plus energy, ठीक है। अब now what happens about this in absence of oxygen in yeast, क्या होता है, एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, ये होता है, ठीक है। एथेनॉल क्या है, 2 कार्बन मॉलिक्यूल, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल सेल्स क्या होता है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, लैक्टिक एसिड इज 3 कार्बन मॉलिक्यूल, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया द पावर ऑफ सेल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, दैट्स ऑल फॉर नॉट द वीडियो ऑब्वियसली। उसके बाद में द एनर्जी जनरेटेड इन सेल्यूलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज्ड to form ATP molecules, which is used to fuel another activities in cell, such as contraction of muscle, construction of nerve impulse, protein synthesis, etc. In this process, ATP is broken down, giving the rise of fixed amount of energy, which can derive the endothermic reaction taking place in the cell. क्या हो रहा है? Basically, ATP फॉर्म हो रहा है। ATP फॉर्म कैसे हो रहा है? ADP, not TP. पहला वाला ADP प्लस फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ओके। पहले इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होगा, जब उनको एनर्जी मिलता है तब वो फॉर्म होता है ADP फिर फॉस्फेट इक्वल्स टू ATP, ठीक है। अब अगर पूछे ATP क्या है, ATP बेसिकली ADP P, मेरे को नहीं पता क्या है, दिखाई नहीं देता क्या, ऐसे वो सिमिलरिटी होता है ना मैथ्स के अंदर में, उसका साइन पता नहीं। अब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। नाउ व्हेन यू आर आस्क्ड दिस क्वेश्चन, अगर 5 मार्क्स है तो 5 पॉइंट लिखते हैं, लेकिन नॉर्मली लोग 4 पॉइंट लिखते हैं, उनको फुल मार्क्स मिल जाते हैं, लेकिन यू शुड राइट 5 पॉइंट्स, लेकिन इसमें 4 पॉइंट्स लिखा है। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस, सेमी या फिर बोल सकते हैं इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, begins in cytoplasm and continues in the mitochondria, example most plants and animals, occurs only in cytoplasm, example yeast, humans, muscle cells and certain bacteria। अब मैंने 4 पॉइंट बोला, लेकिन तुमको इसे अगर 5 पॉइंट करना है तो लास्ट वाला जो पॉइंट में लिखा है begins in cytoplasm and continues to the mitochondria, एग्जाम्पल्स का अलग से पॉइंट बोलाना, 5 पॉइंट हो गया बल्ले बल्ले, ठीक है। नेक्स्ट रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, बहुत अच्छा टॉपिक है क्योंकि इसके अंदर तुम्हारा लीव्स, स्टेम्स, रूट, उसका भाई, उसका चाचा, उसकी दादी, उसकी मामी, सब में होता है, ठीक है। नाउ व्हाट
हाउ बेसिकली अगर तुमको इंट्रोडक्शन चाहिए रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में, तुम बोल सकते हो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स ऑकर थ्रू स्टोमाटा एंड लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेसिस प्रेजेंट थ्रू द प्लांट बॉडी। बहुत बड़ा को लाइन है, बेसिकली स्टोमाटा और इंटरसेल्युलर स्पेसिस के अंदर होता है, बाकी बात खत्म। नेक्स्ट, इन लीव्स, सबसे पहला पॉइंट इन लीव्स। लीव्स के अंदर कैसे रेस्पिरेशन होता है प्लांट्स के अंदर। गैसेस एक्सचेंज इन लीव्स टेक्स प्लेस बाय डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन थ्रू स्टोमाटा। ये हमेशा इधर में डिफ्यूजन होता है, मैं भी मार्कर में लगा लेता हूँ इधर में। बाय डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन थ्रू स्टोमाटा इनटू द लीफ, गैसेस एक्सचेंज, याद रखने का चीज़। डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन में डिपेंडेंट अपॉन एनवायरमेंटल कंडीशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स। ज़्यादा कुछ नहीं है, क्या है, डिफ्यूजन होता है क्योंकि प्लांट्स का जो स्टोमाटा होता है उससे डिफ्यूजन होता है, बाकी बात खत्म। नेक्स्ट, ड्यूरिंग डे टाइम व्हेन फोटोसिंथेसिस ऑकर्स, कार्बन डाइऑक्साइड is rapidly used, releases oxygen O2 as the major event. Thus, the next gas exchange in leaf occurs during the day time is O2 diffuses out CO2 diffuses in the other hand during night elimination. अब देखो, लीव्स के अंदर बहुत अलग अलग टाइम्स में होता है, तो बेसिकली ऑन द अदर हैंड ड्यूरिंग नाइट में होता है कैक्टस जो होता है, जो अरेबियन नाइट्स उसके अंदर होता है, उसके अंदर रहता है। द अदर हैंड ड्यूरिंग द नाइट एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिस द नेक्स्ट गैस एक्सचेंज लीव्स एट नाइट इज O2 डिफ्यूजन CO2 जो भी है, ठीक है। रात के अंदर में CO2 लेके आता है, बाहर में जाएगा O2 डिफ्यूजन CO2 डिफ्यूजन आउट। नाउ this can be understood by the following, the presentation। डे टाइम में क्या होता है, ठीक है, CO2 जनरेट, क्या हाल है ये, ठीक है, ठीक है। CO2 generated during respiration, photosynthesis, O2 release। At night, no photosynthesis, respiration, CO2 release, सिंपल। अब ये जो होता है, अब इसके अंदर रूट्स के अंदर कैसे होता है रेस्पिरेशन। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन रूट्स ऑफ प्लांट्स ऑल्सो टेक्स प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन फ्रॉम द एयर प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल। सॉइल के बीच में छोटा छोटा स्पॉट्स होता है, जैसे बोल सकते हो मेरा हाथ सॉइल हो गया, इसके बीच में जो डॉट्स दिख रहा है ऐसे एयर रहता है स्मॉल। तो जो रूट्स होता है, रूट्स ऐसे आता है, उसके अंदर में इन सब से डिफ्यूजन कर के डिफ्यूज कर लेते हैं इनके साथ, ऐसा ही और कुछ है भी। सॉरी, ओके, वही बस ये टॉपिक ख़त्म नहीं होने वाला, राइट, आधा बना एक ही पेज बचा। तो हाँ, रूट्स के अंदर क्या होता है, मैंने जो भी बताया वही हो रहा है। और ऑक्सीजन डिफ्यूजन इनटू द रूट हेयर पासेस थ्रू द रूट सेल्स फ्रॉम वेयर द कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स आउट इन द सॉइल। बेसिकली ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड दिया, राइट। रूट हेयर एंड पासेस थ्रू इनटू द रूट सेल्स फ्रॉम वेयर द कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स आउट, ठीक है। इन स्टेम्स, थर्ड एंड लास्ट, इन स्टेम्स in woody plants, gaseous exchange occur through the small pores found in the stem called lenticels। ये कौन सा नया सस्ता स्टोमाटा है? यस, इसीलिए सस्ता स्टोमाटा जो तुम्हारा बाग्स के अंदर रहता है। तो अगर तुमको बेटर समझना है तो हाथ में दिखा देता हूँ, ज़रा हाथ को व्हाइट बोर्ड बना, ये दिख रहा है मेरे हाथ के अंदर से मैंने ड्राइंग बनाया है बहुत अच्छा सा। यहाँ पर ये जो तुमको गैप दिख रहा है, ऐसा लेंटिसल्स होता है बाग्स के अंदर, एकदम बड़ा बड़ा नहीं होता है, छोटा छोटा होता है, माइन्यूट सा होता है, एंड इट्स यूजफुल, ठीक है। इसको पढ़ते हैं, क्या लिखा है अबाउट इट, इट्स रिटन ओवर कि lenticels, the oxygen from the air diffuses into the stem of woody plant through lenticels and vessels in the inner cells of the stem for respiration। जो भी है, जैसे कि ये है बार्क, यहाँ से हवा आता है भुर्र भुर्र, लेंटिसल्स के अंदर घुसता है, जो बाकी तुमको पता ही है क्या होता है, ठीक है। वापस से पढ़ के सुना देता हूँ अच्छे से। द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर डिफ्यूजेस इनटू द स्टेम ऑफ अ वुडी प्लांट थ्रू लेंटिसल्स एंड वेसल्स एट द all the inner cells of the stem for respiration।
एट द इनर सेल्स होना चाहिए, एट द इनर सेल्स ऑफ द स्टेम फॉर रेस्पिरेशन। जो स्टेम्स के अंदर इनर सेल्स होता है वहाँ पर रेस्पिरेशन फॉर्म होता है लेंटिसेल्स के कारण। पास अब तुम्हारा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स खत्म। नाउ कम्स योर यस रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। यस हम लोग भी एनिमल्स ही है। तो अगर तुम किसी को बंदर बुलाते हो तो यू आर ऑल्सो बंदर, ठीक है। अगर किसी को कुत्ता बुलाते हो तो तुम भी उस कुत्ते की तरह ही हो टेक्निकली, बायोलॉजिकली वो सब। सो respiration in animals. Animals have evolved different organs of the uptake for the oxygen from the environment and get rid of the carbon dioxide produced. क्या बोल रहा है, हम लोग इतने साल से जो पागलपंती करते आ रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या है, लॉन्ग्स। एनिमल्स के अंदर कुछ अलग होते हैं, कोई फ्रॉग्स के अंदर स्किन वाला होता है, बाकी उन लोग का है, ठीक है, सच सच टोमाटा बना के रखते हैं। तो अब इसमें क्या बोला है, These organs work together and constitute the respiratory system for an organism. फैंसीली बोला है, हम लोग जो सांस वास लेता है उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं, सिस्टम पाड़ देंगी, ठीक है। फॉर एफिशिएंट गैसेस एक्सचेंज रेस्पिरेटरी सर्फेसेस शुड बी थिन वॉल्ड। व्हाट आर द क्राइटेरियाज फॉर गैसेस एक्सचेंज और रेस्पिरेटरी सर्फेस? इट शुड बी थिन वॉल्ड एंड मॉइस्ट टू स्पीड अप डिफ्यूजन, हैव लार्ज सर्फेस एरिया, बी रिच इन ब्लड सल्फर। कुछ याद आ रहा है? एल्वियोली पढ़ा था ना बचपन में, कभी जिंदगी में कभी तो पढ़ा होगा तुम लोग, इतने भी तो गवार नहीं होगा भाई, एल्वियोली कभी पढ़ा होगा, वो भी उस पर आगे हम लोग जाएंगे, ठीक है। तो गैसेस एक्सचेंज एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हम लोग ह्यूमंस के बाद में रखे रखे हैं, ठीक है। गैसेस एक्सचेंज इन एक्वाटिक ऑर्गेनिजम, सिंस द amount of dissolved oxygen in water is fairly low as compared to amount of oxygen present in the air, this results in an increased rate of breathing in aquatic organisms when compared with terrestrial organisms. Fishes take in water through their mouths and force it to pass through the gills, where the dissolved oxygen is taken up by the blood flowing in blood vessels. बेसिकली सस्ता एल्वियोली क्या है, हम लोग का एल्वियोली ऐसा होता है, उन लोग का एल्वियोली ऐसा होता है। तो करके वो लोग पानी लेता है और उसके बाद में उनका जो पीछे का गिल्स होता है, जैसे ऐसे गिल्स हो गया ना, ऐसे ही पकड़ सकते हो, हाँ ये गिल्स हो गया। अब इनका ये जो पार्ट होता है, ये वाला और ये वाला पार्ट, इन दोनों में तुम्हारा क्या होता है, ब्लड वेसल्स रहता है। क्योंकि अगर तुम नॉर्मली देखा होगा फिशेस का जो फिन्स होता है, फिन्स बोलता हूँ, गिल्स होता है, उसके बाद बहुत रेडिश रहता है वो लोग अंदर की तरफ। अगर तुम कोई बंगाली हो तो तुमको पता होगा, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स वर कंपेयर विद टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, फिशेस टेक इन हार्ट जैसे बोला था, तो उसके यहाँ पे ब्लड वेसल्स रहता है जो डिफ्यूजन में हेल्प करता है। उसमें क्या था, पहला डज इट, अब तुमको चेक करना है कि उस पर एक्चुअली काम करता है कि नहीं, बिकॉज यू शुड नेवर बिलीव द बुक, ओके, यू शुड अंडरस्टैंड द बुक, नेवर बिलीव इन इट। और बहुत फिलोसफी चाहती है। अभी सुनो, थिन वर्ल्ड है क्योंकि गिल्स आर वेरी थिन वर्ल्ड। तुमको अगर नहीं पता तो तुम ऑब्वियसली वेजिटेरियन लगते हो। द मॉइस्ट टू स्पीड डिफ्यूजन, मछली मॉइस्ट नहीं होगा पानी के अंदर तो और क्या होगा। नेक्स्ट, हैव लार्ज सर्फेस एरिया, गिल्स के अंदर एक्चुअली लार्ज सर्फेस एरिया होता है। बी रिच इन ब्लड सप्लाई, ब्लड वेसल्स है तो ब्लड सप्लाई हो गई होगा। नाउ गैसेस एक्सचेंज इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, the terrestrial organisms use atmospheric oxygen for respiration. This oxygen is absorbed by the different organisms and different animals. All these organisms have structure that increase in the surface area present in the contact with oxygen rich atmosphere. Rich atmosphere. The surface area where exchange of gases takes place is very fine and delicate. For the protection of the surface, it is usually placed within the body so that they have a passage that will take care of the where the oxygen is dissolved. In addition, there is a mechanism for moving air in the out of. भाई इसे लंग का प्रोसेस के लिए इतना लिख के रखा है। I'll explain you. हवा go in, ठीक है, very sensitive. That's why it inside us, not outside us. It inside us, it goes in, it has fun. It does diffusion. Diffusion comes, diffusion goes, diffusion out, air out. O2 in, CO2 out. Wow. ऐसा ही इसके लिए, ठीक है। अगर तुमको एक्चुअली ढंग से समझना है तो उसमें तुम ऐसे समझ सकते हो। जैसे इसमें लिखा है, दिस ऑर्गन्स हैव अ स्ट्रक्चर दैट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया प्रेजेंट इन द कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर। अब क्या है, एल्वियोली इज लाइक अ आम का गुच्छा मतलब अंगूर का गुच्छा, तो उसके अंदर बहुत छोटे छोटे बॉल्स टाइप का चीज़ होता है जो तुम्हारा सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। अब व्हेन यू सी उसका कैसा, बस टर्मिनल देखा कभी तुम, या फिर ट्रेन टर्मिनल, ट्रेन ऐसे आता है, ठीक है, और तुमको लेके जाता है, रुकता है, लेके जाता है, वही चीज़ होता है। सो दिस इज द ऑक्सीजन एंड दिस इज योर एल्वियोली एंड दिस विच ओके दिस इज योर ब्लड वेसल एंड दिस फ्रॉम हियर गोज थ्रू योर तुम्हारा ब्लड। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है तुम्हारा हार्ट में जब आऊँगा तो तुमको समझ में आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे आता है, ठीक है। तो द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द हार्ट
एंड मतलब होल बॉडी से घूम के हार्ट से आता है, हार्ट से पंप इधर होता है हमारे पास, ठीक है। तो वो इधर हमारा जो ये तुम्हारा ये हो गया कैसे बोले जो ब्लड वेसल्स होता है डीऑक्सीजेनेटेड वाला ये किसी ने एक पेड़ा खाया, पेड़े जैसे दिखता है, ठीक है, छोटा पेड़ा, तो उसके वहाँ से ऐसे आया घुसा। अब ये जो एल्वियोली है यहाँ डिफ्यूजन होता है, क्योंकि जो एयर है वो एल्वियोली के अंदर और O2 है वो एल्वियोली के अंदर में आके बैठ जाता है। हम बैठे हैं, हमें खाना दो, ठीक है। अब वो ट्रेन में चढ़ जाता है, कौन सा ट्रेन, सेल वाला ट्रेन। अब वो डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड है वो इधर उधर कर पुरा के तुम्हारा ऑक्सीडेटेड ब्लड बनता है, तुमको उतना डीप में नहीं जानना। अब वो वहाँ से वापस तुम्हारा हार्ट में जाता है जो तुम आगे पढ़ो। तो ये हो गया तुम्हारा कैसे ऑक्सीजनेशन होता है। अब तुमको जब डायग्राम करा जाएगा फटेगा तुम, क्योंकि इसके अंदर लंग्स के अंदर में इतना सारे पार्ट्स है जो तुम्हारा पूरा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर नहीं, ठीक है। तो उसको बेटर समझ लीजिए। यहाँ पे एनसीईआरटी के अंदर शायद से डायग्राम बड़ा डायग्राम, ठीक है, और बड़ा डायग्राम मिला, ठीक है, वो दिख रहा होगा, ठीक है। दिस ये एल्वियोली है, मैंने बोला ना अंगूर का गुच्छा, और ये जो पार्ट दिख रहा है ना छोटा छोटा, यहाँ पे तुम्हारा डिफ्यूजन होता है। अब जब तुम्हारा यहाँ से हवा आता है, यहाँ नीचे जाता है, यहाँ पे जाके पुचुक पुचुक होता है। सबसे टॉप होता है नेजल पैसेज, ठीक है, दिस इज नेजल पैसेज। तुमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, डोंट नो, पास में होता है, हाँ, दिस इज नेजल पैसेज, ठीक है, यहाँ से आता है नीचे। और ये क्या है तुम्हारा माउथ कैविटी, उसके बाद में नीचे आता है फेरिंग्स, दिस इज लैरिंग्स, ठीक है, दिस इज ट्रेकिया, दिस इज ट्रेकिया, ठीक है। अब ये जो रिंग जैसा दिख रहा है तुमको, दिस इज कॉल्ड रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ठीक है। और ये पता है क्यों यूज़ होता है, क्योंकि इतना जोर से हवा आ रहा है, फू करके जा रहा है, तो उसमें अगर नॉर्मल होगा तो फटफुड़ा जाएगा। तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज तुम्हारा उसको थोड़ा सा स्टॉपेज देता है, जैसे कि तुम्हारा छाती का फट करके फटना चाहिए, इसी टाइप का कुछ होता है। कुछ जाने का दरकार नहीं, वो दैट्स नॉट नीडेड, इट्स एक्स्ट्रा नॉलेज दैट आई एम गिविंग यू, ठीक है। अब यहाँ से जब नीचे आता है देन इट गोज टू ब्रोंकी, ये ब्रोंकी है, डोंकी नहीं ब्रोंकी, दिस डिवीजन इज ब्रोंकी एंड द स्मॉल लाइनिंग दैट इज कमिंग हियर ओवर हियर, तुमको अगर दिख रहा होगा ये जो लाइनिंग आ रहा है ये इज कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, हाँ ब्रोंक्यूल्स, हाँ। अब उसके नीचे में एल्वियोली सैक, एल्वियोली सैक ऐसा दिखता है क्लोजअप में, यहाँ पे दिख नहीं रहा, क्लोजअप में ऐसा दिखता है, दिस इज एल्वियोली सैक। अब ये जो तुम्हारा छोटे छोटे लाइनिंग दे रहा है दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। ज़्यादा क्या है ब्रोंक्यूल्स का रेस्पिरेटरी सिचुएशन। अब जो एल्वियोली है वो तुम्हारा टॉप वाला पार्ट है, ये वाला, तो मेरी एल्वियोली वाला ऐसे काम करता है, बस दैट इज योर रेस्पिरेशन, सिंपल एंड डन, दैट इज इट, नथिंग एल्स, ठीक है। अब और तुमको अगर बुकिश तरीके से समझना है तो तुमको मैं एक टॉपिक से आगे समझाता हूँ, ठीक है। कसम से सब कैसे करते ना, एक कसम से मर जाऊँगा, ठीक है। कितना बच्चा है, ओ लास्ट पार्ट है, इसके बाद ख़त्म होने वाला है, लेट्स गो नाउ। नॉस्ट्रिल्स, दिस takes air into the body through the nostril. Air taken into the body through the nostril. These are lined by fine hair mucus. दिख रहा है कितना गंदा हूँ मैं, मजाक कर रहा हूँ। Which helps to filter the air entering through them. ये जो हो रहा है ना, ये म्यूकस और हेयर का मिक्सचर है, अंदर हेयर होता है हमारा, ठीक है। नेजल पैसेज, एयर एंटरिंग द नॉस्ट्रिल लीड्स टू द नेजल पैसेज, जो मैंने दिखाया था अभी, मैं कैसे रखता हूँ, ठीक है, तो समझ में आएगी। ये नेजल पैसेज में है, ठीक है। एयर एंटरिंग द नॉस्ट्रिल लीड्स टू नेजल पैसेज, इट इज़ मेनली कंडक्टिंग, तुम देखते रहो, हाँ पहला वाला नेजल पैसेज है, याद रखना। इट इज़ मेनली कंडक्टिंग जोन फॉर एयर। फेरिंग्स, फेरिंग्स सबसे ऊपर वाला है, ये वाला दिख रहा है, फेरिंग्स लिखा है, फेरिंग्स। नेजल चेम्बर ओपन टू द फेरिंग्स, इट प्रेसेस एयर टू द larynx or the sound box. It is located in the neck region and in front of the trachea. It also provides sound. This is trachea का काम, ठीक है। Next, bronchi. Bronchi क्या था? Not a donkey. Bronchi. छाती में यहाँ से निकलता है साइड, ठीक है। ये जो साइड में डिफरेंशिएशन हो रहा है ना, ये है तुम्हारा bronchi. Now the work of bronchi. Trachea divides into two smaller tubes called bronchi. Okay, sorry, मैंने trachea के मैंने बताया नहीं. What is trachea? Trachea is this lining, ठीक है। इस लाइनिंग को पूरा trachea बोलते हैं, ठीक है।
air passing from the pharynx goes into the trachea. It is also called the windpipe. Incomplete rings of cartilage present in the throat keep trachea opening, keep trachea open, allowing the passage of air to the lungs. These ensure that the air passage does not collapse. क्या होता है, बस ऐसा करते हैं ना, तब टन जाता है तो चुक करके बंद हो जाता है. तो कभी कभार अगर तुमने कोई मोटा कर पाइप अगर देखा, मतलब मोटा क्या है, बड़ा पाइप, उसके अंदर में करके जो से टन हो गया तो पचक जाता है. ठीक है, क्योंकि उसके अंदर में फटाक से जो एयर है वो हट जाता है, तो एक से मिनी वैक्यूम फिर भर जाता है, लेकिन तब तक तुम मर जाओ, गारंटी. ठीक है. नेक्स्ट, ब्रोंकी कम्स. Trachea divides into two smaller tubes called bronchi. After entering the thoracic cavity, which further extends into each one. क्या है thoracic cavity? ज़्यादा कुछ नहीं है. ठीक है, जो तुम्हारा रिब्स के पीछे में जो सबसे पहले ये जो ट्रैकिया यहाँ आता है, यहाँ पे आके यहाँ पे डिवाइड हो जाता है ऐसे करके. ठीक है, जो तुम्हारे छाती यहाँ पे साइड में होता है ना, वहाँ पे उसी तरीके से ब्रोंकी वहाँ पे डिवाइड होता है. उसके बाद वहाँ नीचे आता है, उसके बाद वो ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होता है. फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में आता है. रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स फर्दर गोज इनटू एल्वियोली. तुमको बताया था, मैं इतनी बार दिखाऊंगा नहीं. ठीक है, मेरा हाथ दुखता है, मेरा हाथ दुखने लग गया. ओके, नाउ वी टॉक अबाउट द आउटर पार्ट. ठीक है, मतलब जो लेट्स टेक ना ब्रॉडेस्ट पर्सपेक्टिव. जो तुम्हारे ब्रॉडेस्ट पर्सपेक्टिव में तुम्हारे रिब्स आते हैं, रिब्स. ठीक है, रिब्स, देयर आर 12 पेयर ऑफ बोन्स फ्रॉम अ केज इन द थोरियाक रीजन. थोरियाक क्या है? छाती. ठीक है, छाती वाला रीजन हो गया थोरियाक रीजन, जो भी है. ठीक है, लंग्स एंड हार्ट आर सेफली प्लेस्ड इन इट. मूवमेंट फॉर इंटरकोस्टल मसल्स अटैच टू द रिब्स हेल्प इन ब्रीदिंग. लंग्स, इंटरकोस्टल मसल्स, डायफ्राग्राम हो गया, बाकी सारा नॉट दैट मच. लंग्स, these are primary organs of the respiratory. तो तुमने इतना जो फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया सुना, दैट उसके ऊपर में एक मसल का कवरिंग रहता है, दैट इज कॉल्ड लंग्स. These are primary organs for respiration which are located in two sides of heart. Lungs allow transportation of O2 from the atmosphere into blood and releases CO2 in the blood to the atmosphere. These are enclosed by the protective membrane called pleura. इतना जाने की दरकार नहीं, लंग्स का तुमको पता है क्या करता है. ठीक है. डायफ्राग्राम, इट इज अ मस्कुलर पार्टीशन प्रेजेंट इन पाकिस्तान. Diagram, it is a muscular partition present between thorax and the abdomen which forms the base of chest cavity. ये जो जगह होता है ना तुम लोग का, ये जगह यहाँ पे होता है तुम्हारा, यहाँ पे तुम फील करोगे, हाथ लगाओगे तो तुम्हारा क्या होता है, वहाँ पे एक एंडिंग फील होता है. उसके ठीक नीचे डायफ्राग्राम होता है. डायफ्राग्राम में ऐसे होता है, जब सांस है तो सांस हो तो ऐसा होता है. ठीक है. नेक्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन बीइंग्स. पहला है इनहेलेशन. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड इनहेलेशन, जो तुमने नॉस्ट्रिल से किया था. इनिशियली एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू नॉस्ट्रिल्स एंड पास डाउन थ्रू द ट्रैकिया. तुमको पता है, ये बताया. चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर ड्यू टू फ्लैटेंड डायफ्राग्राम एंड लिफ्टेड रिब्स. ठीक है. Expansion of chest cavity creates a partial vacuum in the chest cavity. To equalize the pressure, air is sucked into the lungs and fills the expanded alveoli. कभी तुमने पुराना बीपी देखा ऐसे पुचुक 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 करके तुम्हारा करता है, दैट उसी टाइप का चीज़ होता है. उसके अंदर एयर इन होता है. ठीक है, तो उस पर क्या होता है, पुचुक 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 करके तुम्हारा देख पुचुक 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 करता है. उसके बाद में जो हवा आता है वो अंदर टनता है. अंदर टनने के बाद वो जो तुम्हारा होता है वो एयर आ जाता है. एयर आने के बाद O2 C2 O2 ऐसे करता है, पागल करता है. तुमको तो बताया एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एल्वियोली. अब एल्वियोली सेक्शन को पता था, अब एल्वियोली का बताता हूँ क्या होता है उसके अंदर. द सीक्वेंस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड विच ऑकर्स बिटवीन ब्लड वेसल्स एंड एल्वियोली इज लिस्टेड बिलो. ऑक्सीजन इज सेक्रेटेड फ्रॉम ब्लड. ऑक्सीजन ब्लड से मिलता है बाय ब्लड फ्रॉम एल्वियोली टू ब्लड वेसल्स. जो उधर ब्लड होता है उसमें हेमोग्लोबिन इन ब्लड टेक्स अप ऑक्सीजन एंड कैरीज इट टू द टिश्यूज विच आर डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन. Which you need oxygen everywhere. ठीक है. Oxygen is then transported to all cells of the body by respiratory pigment and due to diffusion pressure. उतना जाने का दरकार नहीं, बहुत बकवास लिखा था, बहुत ज़्यादा करके लिखा है. इनहेलेशन
ठीक है, बाकी चल रहा है एक्सेलेशन, बस करो। दैट्स इट फॉर रेस्पिरेशन। दिस इज पार्ट 2 ऑफ रेस्पिरेशन एंड लॉगिंग ऑफ। बाय बाय। मैंने ऑल इन वन NCERT एंड S10 से पढ़ाया, बहुत हार्ड हुआ। 40 मिनट्स के अंदर रेस्पिरेशन ख़त्म कर दिया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। तो आडियोस अमीगोस।